Yes. So how's everyone and sharing and magics happening in life? Gopadi, you want to share something? नो फोर्स, आप आराम से भी बोल सकते हैं, आप ऐसा मत शर्माइए कि आपने कैमरा ही बंद कर लिया. Nothing as such. Okay, so definitely tomorrow you are sharing. Hello Priya ji. Yes, hello. Thank you Tulsi ji, such a nice fame. Yes, awesome. Tulsi is yet to come, but I think वो आती होगी, so then we'll again thank her for this wonderful thing that she did for us. Yes. So I think we should start the reading. It's already 9:20. Yes. So who wants to read today? I can. Okay. Yes, Rashi, you had started that day, ना? फिर network issue हो गया था ना? Or you had read it? No, I had read it complete. Yeah, you had read it. Yes. If anyone else wants to read, I don't have any. I don't mind reading actually. 1000%. Who was that? I could not see. But I'm saying sure. Absolutely right here. Okay. See, this Who is asked? where Apart from Rashi? It's Deepa. Yeah, Deepa ji. Yes. ये दीपा जी आप आज पढ़ लीजिए एंड देन बिकॉज है ना एवरीथिंग सबको आई थिंक चांस मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा. ऐसा कुछ बात नहीं है, बट जस्ट यू नो इफ यू फील कि you want to read. Yeah. Okay, so we should start the reading because today's chapter is slightly longer and we are going. ऐसे तो आराम से पढ़ रहे हैं. If you feel we are going a little too slow, then you know I would speak less and read more. No, nothing like that. Okay, chaliye, thank you. So where were we? We stopped at life follows you. Yeah, we started with that chapter yesterday. So we covered that it is important that we stay in the positivity zone. And why is that? Because love works when we are positive. Love attracts things to us when we are positive. We are in that positive frequency and we attract positive things in our life. And now it is telling us that whatever we have made in our life, whatever we have done or achieved in our life is all because of our choices. It is all because of the frequency that we have given. If it's a positive thing that is happening in our life, it is because of the positive thoughts. It is because of the love that we are giving to something. So let's see how we are going to change that. So let me see, where did we start? Yeah, we are supposed to start from choose what you love. I'll start. Yeah, please. Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just bonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you. And if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. Yeah. So, and all of us know what is this law of envy. हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था. जनरली थोड़ा सा आई थिंक टच करते हैं इसको मैजिक बुक में. हाँ, लॉ ऑफ एनवी क्या है कि ये बिल्कुल यही बात बता रहा है. अभी हम लोग का नेचर क्या है कि अपन कहीं शादी में जाते हैं और हमने देखा कि अरे उसकी साड़ी तो बहुत अच्छी है. कैसे आई उसके पास साड़ी? जरूर उसने किसी से बोरो की होगी. हाँ, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? उसने ये साड़ी कब ली? डू वी डू दैट? या उसका सेट देख के, हाँ, या उसकी हेयर स्टाइल देख के, कहाँ से उसने ऐसी हेयर स्टाइल बनवाई? वी डू दिस. अगर आप शादी में ऐसा नहीं करते हो तो इनवेरिएबली कभी ना कभी कोई मूवी में किसी को देख के या कोई किसी फ्रेंड का डीपी देख के या किसी का कुछ ऐसा आइटम देख के व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डू वी हैव? हम लोग हर टाइम वॉइस नहीं करते हैं, बट हमारे मन में क्या आता है? इस टाइप के थॉट्स आते हैं. मेरे तो आते थे पहले. हाँ, ठीक है, इसलिए आई एम जस्ट आते हैं.
What kind of a feeling are we giving that particular time? Definitely not love. Yes, yes, yeah. So definitely not love when we are giving such kind of feelings, है ना? तो अगर हम ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स रख रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग? आर वी अट्रैक्टिंग दैट थिंग इन आवर लाइफ और आर वी सेंडिंग इट अवे? तो लॉ ऑफ एनवी कहता है कि अगर हमको उस चीज को देख के जेलसी हो रही है, उस चीज को देख के एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो हम उसको हमारी लाइफ से दूर भेज रहे हैं। बिकॉज बिना उस आइटम के वो फ्रेंड या वो रिलेटिव तो सेम टू सेम है। आज उसके पास वो सेट आ गया है, या आज उसके पास वो सब्यासाची की ड्रेस आ गई है, या साड़ी आ गई है, या जो भी आ गया है जो आपको अच्छा लगता था, एंड उसके पास आ गया है। हम लोग अगर जेलसी फील कर रहे हैं या एनवियस हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों को वो चीज से नफरत है, वो चीज से जेलसी, हमको नफरत नहीं, उस चीज से जेलसी है। तो लॉ ऑफ एनवी विल सी टू इट दैट वो हमारे लाइफ से और दूर हो जाए, वो नहीं आए हमारी लाइफ में। बट दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। वी वांट दैट थिंग इन आवर लाइफ। आई वांट दैट सब्यासाची ड्रेस, आई वांट दैट डायमंड सॉलिटेयर नेकलेस, या वो जो भी उसको बोलते हैं ना, सिंगल लाइन, डबल लाइन, आई वांट दैट। बट इफ आई एम फीलिंग जेलस इफ समवन एल्स इज वेयरिंग इट, if I am feeling jealous of a quality that someone else has, means I am pushing that thing away from my love. I'm not choosing that. And ये कह रहे हैं हमको कि अगर हमारे सामने वो चीज आई है, मतलब यूनिवर्स ने उसको मेरे सामने भेजा है टू गिव इट मोर ग्रेटिट्यूड। रिमेंबर दिस प्रैक्टिस क्यू द मैजिक इन द मैजिक बुक। उसमें क्या था कि आपके सामने जो चीज आ रही है उसको देख के आपको याद आता है कि किसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। रिमेंबर कि वो आपके ड्रीम का है और आपको सामने आ गया, तो मतलब आई हैव टू गिव इट मोर ग्रेटिट्यूड टू अट्रैक्ट दैट इन माय लाइफ। तो सेम चीज हमको यहाँ पे बोल रही है कि अगर हमने किसी चीज को देख के हम जेलस हो रहे हैं, मींस आई हैव गॉन योरसेल्फ आउट ऑफ हैविंग योर ड्रीम कार, माने उसको हम अपने लाइफ से दूर भेज रहे हैं। अगर वो हमारे सामने आई है, मेरी ड्रीम लिस्ट में है, मेरे डिजायर लिस्ट में है, लेकिन किसी और के पास है, देन लाइफ हैज उसी में तो है, नीचे 2 रोटी, इसके नीचे तो था ये। Yeah, so life has presented the car to you so you could choose. Okay, and what do you choose? I choose to give it love. If I choose to give it love, then I'm attracting it to me even more. Because अब देखिए ना, मेरी ऑरा इतनी स्ट्रांग हुई कि वो मेरी आंखों के सामने आ गई, मेरी ड्रीम कार। तो अब हमको उसको और लव देना है, मेरी ऑरा, मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे मैग्नेटिज्म को और स्ट्रांग करना है, ताकि वो मेरी ही हो जाए। अभी तक तो सामने वाले के पास आई है, मेरी आंखों के सामने आई, जिसको अभी तक हम सिर्फ मे बी पेपर में देखते थे, इंटरनेट पे देखते थे, हाँ, या मूवीज में देखते थे, अब वो मेरी आंखों के सामने आ गई है। सो नाउ आई हैव टू गिव इट मोर लव टू एक्चुअली properly attract it in my life. So this is what this paragraph is telling us, that life is presenting everything to you, and what we choose to give to that particular item, relationship, or health is totally on us. If you are feeling jealous seeing someone else's slim figure or long hair or pretty eyes or whatever quality that person has, means I am not choosing love, I am choosing lack of love. And when I'm choosing lack of love, I am pushing that thing away from me. Okay, so it could be anything, because there are actually only two things. हमने ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, either there is light or there is darkness, there is nothing in between. और अगर हम उसको if I am giving it love, means हम उसको हमारे लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। Yeah. Yes, see the other example. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you're overweight and you're walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. Yeah. If so you are struck, just 1 second, if you stop here, अभी देखिए क्या होता है, अभी इतने सारे लोगों के हॉलिडे फोटोग्राफ्स आए थे बिफोर दिस लॉकडाउन, आ रहे थे ना सबके, Maldives के, गोवा के, दुबई के, and some people did go abroad. So if we chose to be happy, if we chose to be grateful कि wow,
कितनी अच्छी पिक्चर्स आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम भी वहां जाएंगे. इफ वी आर चूजिंग दिस, देन आई एम गिविंग लव, देन आई एम चूजिंग लव. या तब वो मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होगा. इफ वी सॉ दैट एंड हम लोग सोचे अभी इतने पैसे कहाँ है, ऐसे ही लॉकडाउन में काम कम हो गया है, पैसे नहीं आ रहे थे, यू नो, एंड इफ यू आर थिंकिंग दिस, इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव, तब वो हमारे लाइफ से और दूर हो जाएगा. बिकॉज लाइफ इज प्रेजेंटिंग एवरीथिंग टू यू, एंड इफ यू फील लव फॉर इट, देन ओनली वी आर ब्रिंगिंग दैट सेम थिंग टू यू. आप हॉलिडे के बारे में ऐसा सोचो, अगर आप, if you want love in your relationship, yeah, if you want more love in your relationship and you see a couple's photograph, and you feel कि नहीं खाली फोटो खींचने के टाइम पे ऐसे ऐसे खिंचा रहे थे, अंदर की बात तो हमको पता, ये लोग बहुत लड़ते हैं. if you are saying like this, then it means you are pushing it away. ठीक है, जैसे भी फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आपकी फोटोज वैसी हैं? हम क्या चूज कर रहे हैं, उसको उस समय नेगेटिव बोल रहे हैं, उसको लैक ऑफ लव दे रहे हैं, तो हम उसको लाइफ से दूर करते हैं. बिकॉज जस्ट नोटिस हियर, she is telling us life is presenting the great body to you, life is presenting the happy couple to you for you to choose. वो इतने बार सेम लाइन को रिपीट कर रही है, सो दैट ये हमारे मन में आ जाए. नहीं आता है. I have read this book, I think fourth time I am reading this book. हाँ, 2 बार आश्वी मैम के संग की है, 2 बार हम लोग ने आपस में की, और बीच बीच में हमने खोल खोल के पढ़ी भी हुई है. ठीक है, सो बट हर बार भूल जाते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, आता है याद, कभी फिर भूल जाते हैं, हर टाइम नहीं याद रहता है. सो इट इज ऑलवेज अ प्रैक्टिस, ईच डे वी हैव टू रिमेम्बर दिस. बहुत दिन हमने कार को बहुत लव दिया, बहुत, फिर भूल गए, अरे तो ड्रीम कार थी मेरी, भूल गए, अब वापस याद आया. लव देते हैं फिर भूल भी जाते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू कीप चूजिंग what we are giving. जो भी हमको चाहिए, अगर वो हमारे सामने आ रहा है, if we are choosing jealousy, if we are choosing, you know, जेलेसी के संग और भी तो चिंता हो जाती है ना हमको, कब होगा मेरा वेट लॉस, कब होगा मेरा ये ड्रीम हाउस, कब होएगा मेरा रिलेशनशिप ऐसा, कब होंगे मेरे मम्मा के संग मेरे अच्छे रिलेशनशिप्स. इफ वी आर थिंकिंग लाइक दिस, देन वी आर नॉट चूजिंग लव. लव मतलब लाइक जैसे ही आपने देखा तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए वाओ, फैंटास्टिक, फैबुलस, जो भी सारे वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी ना हमने, बेस्ट वही है. जो लिस्ट थी ना उसको भी लर्न कर लेना है. हाँ, जैसे ही कोई चीज देखो तुरंत यही स्टार्ट हो जाना चाहिए. वरना क्या होता है, इफ यू डिले दिस रिएक्शन, सबसे पहली जो चीज आती है ना, अच्छा ऐसे से नहीं देखते, यू हैव सीन इन मूवीज ना एंड सीरियल्स, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, वैसा करने लगते हैं लोग. करेक्ट. So immediately you have to start on this list. Wow, amazing, fabulous, जिसकी फोटो आए कुछ भी इस टाइप की, तुरंत यही रिएक्शन. When you do this, and trust me, I have tried this, जैसे ये रिएक्शन निकलता है ना अपना, तो बाकी सारी फीलिंग्स थोड़ी सी सबदी हो जाती है, वो लोग डर जाती हैं. मेरे को जनरली ना वो सैडनेस वाली आती है, हो कब होंगे मेरे इतने लंबे बाल, कब होंगे मेरे इतने कर्ली थिक हेयर, ऐसी आती थी. तो नाउ आई इमीडिएटली से वाओ, तुरंत ऐसे बोलने से क्या होता है ना, वो वाली फीलिंग थोड़ी सी भाग जाती है. तो ये फीलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग, ट्राई इट आउट. ट्रस्ट मी, आप लोग भी शेयर करना कल की कुछ ऐसा देखा और आपका रिएक्शन क्या निकला. दिखता ही रहता है, इतने सारे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आते हैं. इफ यू आर ऑन फेसबुक, थैंकफुली आई एम नॉट, उसमें कितने सारे आते रहते होंगे ना, जो भी आते हैं पोस्ट होते हैं ना, वो आते रहते हैं. आप उसमें देखना आपको क्या रिएक्शन आता है तुरंत. आपको उस रिएक्शन को जो नॉर्मल में आता होगा ना, दोज हु आर इन दिस प्रैक्टिस, उनका नहीं पता, जो इनिशियल हमारा होता है ना, जो बेसिक ह्यूमन नेचर वाला, जो बेसिक होता है ना एकदम ऐसा वाला, उसको कर्व करके रखना होता है और इमीडिएटली पॉजिटिव रिएक्शन करना होता है. सो उसके लिए ये 5 वर्ड्स जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, टेरिफिक, ऑसम, अमेजिंग, फैंटास्टिक, एंड एक और था वो अभी याद नहीं आ रहा है, वो करना है, झकास, और ये सारे वाले वर्ड्स ही अब तुरंत निकालिए, एंड यू विल सी यू आर अट्रैक्टिंग दैट, यू आर चूजिंग लव इन दैट सिचुएशन. आएगा धीरे धीरे, बट वो प्रैक्टिस से आएगा डेफिनेटली. ओके, सो यस दीपा जी, If you are struggling with some kind of disease and you're surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you, so you can choose health. And so when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. Yeah, so again, if we are in a not so healthy situation, and if we have some breakdowns, and if we feel sad for ourselves seeing someone else healthy, happy, होता है ये सब भी. हाँ, तो तभी भी हम लोग क्या चूज करना है, सेम थिंग, वी हैव टू चूज हेल्थ. लाइफ इज प्रेजेंटिंग healthy people to you so that you can choose health. And if we choose love for health, then we are attracting that in our life. तो आपने देखिए, इन्होंने हमको हैप्पी कपल का एग्जांपल दिया है, वेट का एग्जाम्पल दिया है, डिजीज का दिया है, अब और भी एग्जाम्पल्स हम लोग को ऐसे दिखेंगे, ड्रीम कार का भी दिया है. सो कुछ भी हमको जो चाहिए या जो हमारे पास अभी नहीं है और हम चाहते हैं हमारे पास हो जाए, उसके लिए अगर हम लोग पॉजिटिव फीलिंग्स देंगे, उसके लिए हम हैप्पी फीलिंग्स देंगे, दैट इज द टाइम व्हेन वी आर अट्रैक्टिंग दैट टू अस इवन मोर. या
When you feel good about anything any person has, you're bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you're choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. या सो अब अगर आप देखिए कि मे बी आपके बच्चे का एडमिशन अभी होना बाकी है, वो अभी छोटा ही है इसीलिए नहीं हुआ, एंड सामने वाला का एडमिशन कोई दूसरे कॉलेज में हो गया या कोई यूनिवर्सिटी में हो गया या उसका कहीं पे जॉब हो गया जो आपको चाहिए था, तब आपको सेम रिएक्शन करना है, पॉजिटिव वाला, लव वाला, तब आपके लाइफ में वो अट्रैक्ट होगा. इट कुड बी अबाउट सक्सेस, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग एनी पर्सन हैज. ठीक है, ये नहीं कि सिस्टर के पास है तो ठीक है, नेबर के पास है तो खराब है. नो, anything any person has, we have to choose love, we have to choose positive feelings for that. ठीक है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बट हो जाता है, करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ हमको कैटलॉग दे रही है चूज करने के लिए. ठीक है, क्या चूज करना है, क्या हमको अट्रैक्ट करना है, वो ही हमारे लाइफ में आएगा. यस, सॉरी. If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person, and you're bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. या तो अब हम लोग को यही करना है, मूवी भी देखेंगे तो उनको अप्रिशिएट करना है, तब वो हमारे पास क्वालिटीज आ जाएंगी. राइट, तो यही करना है हम लोग को. वी हैव टू चूज लव, वी हैव टू चूज पॉजिटिव रिएक्शंस. यस, yes, Deepa ji, please unmute. If you want to become a parent and you've been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you see children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. Yeah. So if you feel कि आपको अपना relationship अच्छा करना है with your husband or your wife or your kid, and you are seeing maybe शिल्पा शेट्टी को आप देखते हो अपने राज कुंद्रा के संग में, उसके काफी अच्छे अच्छे पोस्ट आते रहते हैं ना, फैमिली फोटोग्राफ्स वाले, वो वाले. तो जब आप उनको देखो, जस्ट कीप अप्रिशिएटिंग हर. वो तो अच्छा है ना, उसको तो अप्रिशिएट करना इजी है. या आपके लाइफ में कोई है, उसको आप अप्रिशिएट करते रहो पूरा टाइम मन में, दूसरों के सामने कि वो लोग कितने अच्छे से रहते हैं, लाइक हैप्पीली. ये नहीं कि आप हस्बैंड को चिढ़ाने के लिए, देखो उसने तो उसके लिए इतने सारा गिफ्ट लाया, उसने तो उसके लिए ये कर दिया, वैसे नहीं, हैप्पी वाले उसमें. ठीक है, जस्ट जनरल हैप्पीनेस के लिए कि वाओ दे आर सो लकी, ऑन वही पांचों वर्ड्स यूज करके दे आर लुकिंग सो टेरिफिकली हैप्पी इन लव एंड व्हाटएवर, ऐसा आप रिएक्शन दो. इफ इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप दैट यू आर वांटिंग टू इंप्रूव, इफ यू वांट योर किड्स टू लव यू द वे मे बी कौन, रणवीर सिंह नहीं, रणबीर कपूर लव्स नीतू कपूर, सभी बच्चे करते हैं, बट ऐसा आपको कुछ दिखना है तुम्हारे, आप समझ रहे हो कि जो आपको चाहिए वही आप दूसरों को देख के अप्रिशिएट करो, नॉट feel jealous, not feel bad or sad about that. Yeah, so please continue. When you're playing a sport and another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be as excited as they are. You should be as excited and happy as though it has happened to you, because then you're saying yes to it. Then you are giving love to it and you're bringing it to you. Yeah, see the same thing. आपको उतना ही एक्साइटमेंट और हैप्पी फील करना है जैसे कि वो आपको मिल गया है. ये नहीं कि पहले तो एक्साइटेड एंड हैप्पी हो गए फिर सोचे मेरा कहाँ है ऐसा फिगर. राइट, शिल्पा शेट्टी को अगर आप देख रहे हैं, ज्योति जी, ऐसा ही होता था ना पहले मेरे साथ, वाओ शी इज सो नाइस, पता नहीं कब मेरा ऐसा होएगा. ठीक है, ऐसे नहीं करना है, अप्रिशिएट करना है एंड फील इट कि एज इफ यू आर ओनली हैविंग दैट सुपर फिगर, और एज इफ योर किड हैज ओनली गॉट दैट अचीवमेंट, योर हस्बैंड हैज ओनली गॉट दैट प्रोजेक्ट, प्रमोशन, जो भी आपको चाहिए वो. सो वी हैव टू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट. That is the time when we are giving a signal to the universe ki yes, give that to me, I am like, no, give that to me, I already have it, I'm super happy. वैसी फीलिंग देनी है. Okay, so now Priya ji, just sorry to interrupt. yeah, At this point, I remembered that the magic mirror thing. Then when we used to say in the mirror that about everything what I am and what I am not.
generally it is like whatever I am, whatever my body, whatever my character, my nature, whatever, everything, you should be happy with it. You should love yourself Yes. with that. So is it kind of there can be a neutral kind of a feeling also? I mean, generally we say ki, there is nothing neutral. It's either positive or negative. Yes. But then many a times there can be things that you are like, for example, if I see Shilpa Shetty's body, fine, I appreciate it, but it is not for it. I don't think so. I will get that love out of it for it. That's because I don't want that kind of a body. I'm quite happy with myself. So how do we Oh, but see, if you are giving love, it doesn't mean कि आपको वैसे ही चाहिए. Okay, there are so many heroines. I appreciate actors also. Doesn't mean मेरे को ऐसा ही बनना है. No, if you are giving love, means you are being positive about it. You are not being critical. So it is not neutral. You are appreciative of a lot of things, but it doesn't mean that you want all of them. You want all of them. That's exactly. So, exactly. So when you are giving love, you are having that force of love. You have a positive frequency. That is what this paragraph or this book or this whole concept is. That whenever you are giving love, means you are being positive. You are being happy. Okay. If you are increasing your magnetic field or whatever, maybe you do not want it. So if you're not desiring it, you may not want to attract it. Exactly. But then your total जैसे बोलते हैं ना लमसम आपका बढ़ रहा है, that power बढ़ रहा है. बिल्कुल. अब जैसे देखिए मेरा फेवरेट लोटस, सपोज लोटस नहीं है, बट सपोज मेरा फेवरेट लोटस फ्लावर है, बट देयर आर सो मेनी अदर फ्लावर्स एंड इफ आई लुक एट देम एंड आई से नहीं लोटस ज्यादा अच्छा है, नहीं लोटस ज्यादा अच्छा है, मतलब आई एम गिविंग नेगेटिविटी. बट आई एम जस्ट जनरली सेइंग कि नहीं रोज भी बहुत अच्छा, उसका कलर अच्छा है, लिलीज बहुत अच्छे हैं, ट्यूलिप्स कितने प्यारे हैं, बेटा कितना सुंदर है, बट माय फेवरेट इज स्टिल लोटस. आई डोंट वांट ऑल ऑफ देम, बट आई एम स्टिल अप्रिशिएटिंग देम. आई कैन बी अप्रिशिएटिव. Correct. Got it. Thank you. Right. That you are giving love. You are not giving, comparison or some, negative चीजें उसको नहीं देनी है basically. Okay, you have to be appreciative. अगर और especially अगर आप neutral, as if you saying as you are saying कि आपको नहीं चाहिए and फिर भी आप उसको love दे रहे हो, तो आप positivity दे रहे हो. और तब तो positivity देना और easy है जब आपको नहीं चाहिए. Especially क्या होता है, if you want it और आपके पास नहीं है, उस समय positivity देना थोड़ा सा challenging होता है. ये उसी सिचुएशन के लिए कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नहीं है and we want it, that is the challenging time and you should immediately be as excited. and आप करके देखना, suppose आपको maybe आपको हेमा मालिनी अच्छी लगती है, I don't know आपको कौन अच्छी लगती है, but suppose मेरे को लगती है. and you look at her and say wow, she's so pretty, she's so maintained. या रेखा अच्छी लगती है, I don't know, I'm just saying कि आपको शिल्पा शेट्टी नहीं अच्छी लगती तो नेक्स्ट मे बी माधुरी दीक्षित, आई डोंट नो. आप देखो और उसको अगर आप अप्रिशिएट करो, और अप्रिशिएट करते करते इफ यू स्टार्ट सेइंग हम कब ऐसे बनेंगे, हम तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, अब हम कब ऐसे बनेंगे, देन यू आर नॉट चूजिंग लव. ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन आल्सो? Yeah. Okay, thank you Ramaji for your question. Yes, so please continue. When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, it means you're on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. Yes, तो सेम वे अगर आपको सपोज चाहिए आपके बच्चों को कोई न्यू प्रोजेक्ट चाहिए, कहीं पे एडमिशन चाहिए या एंगेजमेंट होनी है, और आपके नेबर के पास हो ऐसा सेम सिचुएशन आ जाए, या उसकी कोई फ्रेंड का हो जाए, या आपकी कोई फ्रेंड के बच्चे का कुछ ऐसा हो जाए, या आपके हस्बैंड का कोई आपको प्रोजेक्ट चाहिए और आपके हस्बैंड के पहले किसी और का हो जाए, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड क्लोजर टू यू. एंड इफ वी चूज टू गिव लव कि और इतना पास आ गया है, एंड व्हेन वी आर गिविंग इट लव, इट विल कम faster to you. Okay, and if we choose negativity and do not give love, it will definitely go away. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर वो आपके सामने आ गया, when you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities in a person, or whatever it is you want, माने जो हमको चाहिए अगर वो हमको दिख रहा है, ठीक है, माने मेरे पास नहीं किसी और के पास आ गया अभी, it means you are on the same frequency of those things. कि माने वो इतने दूर था, एटलीस्ट मेरे सामने आ गया है, अब हमको और एक्साइटेड अगर हम हो जाएंगे तो वो मेरे पास ऑलरेडी और पास आ जाएगा. Yes. Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love, but only love brings what you want to you. Life's catalog
contains many things you don't love. So don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you while pushing away the very thing you want with a mighty force. Only love brings what you want to you. Hmm. This Yeah. is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Yeah. Rainer Maria Rilke, 1875 to 1926, author and poet. Yeah. So here, if we see what Rhonda Byrne is telling us, that everything is coming in front of us in this life. Everything जो हमको चाहिए वो तो दिखती ही है, तभी तो हमको उसके बारे में और पता चलता है ना कि हाँ हमको ये चाहिए. पहले कुछ कुछ वेग वेग रहता है, फिर जब दिखने लगता है बोले हाँ हमको तो ये चाहिए. Like when I was very small, my mom told me, मेरे को तो नहीं याद है, I have a cousin, she's almost my age, थोड़ी सी बड़ी होगी मेरे से. And we used to stay together and of course fighting भी बहुत करते थे, संग में भी रहते थे, जैसे होते हैं same age kids, maybe 4-5 years के होंगे हम लोग. And we went to a restaurant. She was sitting on the other table because the whole family had gone, and I was sitting on another table. And एक जन के पास कुछ इडली डोसा आ गया होगा और दूसरे जन के पास of course वेटर थोड़ी देर बाद नहीं पहुंचा होगा. Both of us were shouting, मेरे पास तो आ गया, मेरा इडली आ गया, whatever. She only told us, and my aunt also used to tell me. And उसके पास नहीं आया, तुम्हारे पास तो नहीं आया, टिली लिली, something like this we did, हाँ. And mom said, तुम लोग दोनों ऐसे चिल्ला रहे थे, it was so embarrassing. तो I was thinking, हाँ ऐसा तो होता है, हमको जो चाहिए है और मेरे पास नहीं है, सामने वाले के पास आ गया, तो maximum times ऐसी ही feeling आती. So when we are doing this, life has presented things to us, and when we react in a negative manner, it is taking, we are pushing it away from us. तो यही है, लाइफ की कैटलॉग में सब कुछ है, वो भी है जो हमको चाहिए और वो नहीं है जो हमको नहीं चाहिए. माने लाइक एवरीथिंग इज देयर, हमको चूज करना है, वो ही चूज करना है जो हमको चाहिए. और वो कैसे चूज करेंगे हम लोग? ओनली बाय गिविंग लव. या तो अगर हम लोग दूसरे पर्सन को लाइक हाउ दे आर सेइंग कि वो लोग खराब हैं, वो लोग ठीक नहीं, अगर लाइक हम लोग बोलते हैं ना इसने ये गलत किया, इसका रिएक्शन गलत था सामने वाले का, सपोज दो जन में कुछ फाइटिंग हुई है और हम जज करने बैठ गए कि इसकी गलती नहीं थी उसकी गलती थी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हमको जज करने का कोई वो नहीं है. हम इफ वी आर जजिंग समवन फॉर समवन एल्सेस बिहेवियर, देन ऑल्सो वी आर चूजिंग नेगेटिविटी. ये मेरे को ना बहुत ही यूनिक लगा था व्हेन आई रेड दिस इन दिस बुक, कि अब सुशांत सिंह का जब केस आया था लास्ट ईयर, तो मेरे को लगा था कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए. इवन दिस is bringing negativity in my life. If I am saying that this government is not doing correct, that is not happening correct, then also we are attracting negativity in our life. अभी तक तो हमने मैजिक बुक में पढ़ा था कि ये कंप्लेंट्स हैं, बट सिर्फ कंप्लेंट्स नहीं है, ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है हमारे लाइफ में. ठीक है, ये वाली मेरे को बहुत ही स्ट्रेंज लगी थी. जज अनदर पर्सन एंड थिंक दे आर बैड एंड यू ब्रिंग नेगेटिविटी टू यू. अच्छा, फीलिंग एनवियस और जेलस तो ये हमको पता ही है, अगर हम लोग जेलस और एनवियस हो रहे हैं तो आती ही है नेगेटिविटी, और हम हमारे लॉ ऑफ एनवी के हिसाब से वी आर पुशिंग दैट थिंग अवे फ्रॉम यू एंड विद अ माइटी फोर्स. ओनली लव ब्रिंग्स व्हाट यू वांट टू यू. Okay, and now this is the miracle that happens every time to those who really love. The more they give, the more they possess. माने ये क्या है, ये कि हर सिचुएशन में हमको लव चूज करना है, in any situation. This is the miracle. माने which miracle? That when you are giving love in any situation, then it will come to you. Whatever you love, whatever you are giving love to, वो हमारे लाइफ में आएगा. This is the miracle. And the more they give, the more they possess. What do they give? The more love they give, the more they possess. In the sense like वो love और देंगे, उनके पास और love आएगा. क्या आएगा? जो उनको चाहिए, जिसको वो love दे रहे हैं, वो उनके लाइफ में और आता चला जाएगा. Okay, so in each situation, in each moment, we have to choose positivity, we have to choose love, we have to use, keep attracting the positivity through our positive feelings. Yeah, so is this clear? ये वाला जो था choose what you love, सबको clear है कि कैसे हमको react करना है, जो सामने दिख रहा है हर situation में कैसे हम लोग को love choose करना है. Yeah. Okay, yeah, please continue, Deepa ji. The law of one, you. There is a simple formula you can use for the law of attraction that will stand you in good stead with every person.
situation, and circumstance. Hmm. As far as the law of attraction is concerned, there's only one person in the world, you. There's no other person, and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you, because the law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. And it's the same for every other person. And so, in truth, the law of attraction is the law of you. There's only you, and there's no other person. For the law of attraction, the other person is you, and that the other person is you, and those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, you're bringing to you. Yeah. So here, if you see this picture, आप देखिए, what is this? This is the reflection, and this is this tiny spark that is here. It is like whatever I am giving to the person in the mirror, okay, that is what I am getting back in my life. Whatever I am giving to anyone, that is what I am attracting in my life. And the law of one is only one, the law of you. माने ये क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ आपके डीड्स दिखते हैं, सिर्फ आपकी फीलिंग्स दिखती हैं, सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी दिखती है, उसको ये कुछ नहीं दिखता कि मैंने उसको थप्पड़ इसलिए मारा कि उसने भी मेरे को मारा था। नहीं, आपने थप्पड़ मारा, बस उसको यही दिखाई देगा। किस चीज के लिए? आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देने के लिए, वो सिर्फ आपको देखेगी। व्हेन वी सपोज मैच चल रहा है कोई क्रिकेट का, सॉरी, एंड तेंदुलकर को नहीं बोलते हैं, चलिए, सम प्लेयर हैज कम टू प्ले द गेम, हाँ, तेंदुलकर ही लेते हैं, चलिए, ही स्टॉप प्लेइंग, एंड सुबह उसकी घर में उसकी वाइफ से कुछ ब्रेक डाउन हो गया, पंगे होके आए कुछ, हाँ, आपको पता चलेगा क्या? उसने अच्छा नहीं खेला और वो किसी को बोले नहीं, सुबह ना अंजलि ने ना पराठे अच्छे नहीं बनाए थे इसीलिए ऐसा हो गया, यू विल बिलीव दैट? कोई पूरी कंट्री मानेगी ये बात? नहीं मानेगी। ठीक वैसे ही कोई भी किसी के संग कुछ भी हुआ हो, इट डजंट मैटर, और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको सिर्फ यही देखता है कि आपने क्या किया। उसको कोई मतलब नहीं है कि अंजलि ने पराठे नहीं बनाए, अंजलि है ना उसकी वाइफ का नाम, बच्ची का तो नहीं है ना, राइट, अंजलि, एंड बच्चे ने उसको कुछ बोल दिया, या ड्राइवर ने गाड़ी जोर से ब्रेक लगा दी, हाँ, या उसके फेवरेट उसका कुछ बैट नहीं था, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, उसने वहां पे क्या परफॉर्म किया, दैट इज द ओनली थिंग मैटर्स, राइट। हम लोग को तो यही पता है ना, हम लोग को कुछ पता चलता है कि नहीं आज उसके सर में दर्द था फिर भी वो खेलने आ गया, कितनी बड़ी बात है, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। वो वहां पे खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? बिकॉज उसने चूज किया है खेलने के लिए, कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस ही मैटर करता है, उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, कुछ मैटर नहीं करता, उसके स्कोर को, है ना, उसको लड़ाई हुई या उसके सर में दर्द था या उसका टमी अपसेट था, क्या वो उसका वो 99 पे आउट होना 100 हो जाएगा? नहीं होगा, उसका जो स्कोर हो गया वो हो गया, इट इज रिटन सेट। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कुछ नहीं देखता, इट ओनली इज वरीड अबाउट यू, देयर इज ओनली यू, बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्डिंग टू योर फीलिंग्स, उसको और किसी से मतलब नहीं है। जो सामने वाले के संग हो रहा है उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए है, उसकी लाइफ में लॉ ऑफ वन उस पर्सन के लिए, मेरे लाइफ में मेरे ड्रीम्स के लिए, मेरी लाइफ के सिचुएशंस के लिए सिर्फ मेरी फीलिंग्स मैटर करती हैं। ठीक है, अब आप सोचो ना, एक सर्जन ही है हॉस्पिटल में, लाइक कबीर सिंह का एग्जांपल लेते हैं, सपोज सर्जन ही एक तो गया है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? वो वहां पे सर्जरी कर रहा है और उससे कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो कुछ एक्सक्यूज दे सकता है? क्या वो इंसान वापस आ जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। अगर एक सर्जरी वो गड़बड़ हो गई, कैन ही रिवर्स इट बाय गिविंग एनी एक्सक्यूजेस? नो। ठीक वैसे ही हमने जो भी हमारे लाइफ में अट्रैक्ट किया, इट इज ओनली बिकॉज द लॉ वर्क्स ओनली फॉर मी, द लॉ वर्क्स ओनली फॉर यू, एंड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन योर फीलिंग्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो आप देखिए, यू वांट टू रीड इट अगेन, वी कैन रीड इट अगेन, बट ये सिंपल है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सिग्नल तोड़ा है तो पुलिस ने मेरे को क्यों पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अलग चल रहा है, उसने कुछ होगा उसका कोई पापा होंगे पुलिस में या वो मिनिस्टर का बेटा होगा, वी कांट से दैट। हमको पुलिस ने पकड़ा है तो सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, वी कैन नॉट गिव एनी अदर एग्जांपल्स। ठीक है, या What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism, and you give it to yourself. Give love
and appreciation to another person or anything, and you give it to yourself. There's no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. When you feel love for it, you're including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment, and you won't include it in your life. Yeah. So if we, अच्छा एक चीज, एक लाइन ये यहाँ पे रह गई. Yeah. This last line. For the law of attraction, the other person is you, and that other person is you, and those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing to you. मतलब कि अगर आपने कहा कि सासू बदमाश है, बहू बदमाश है, बेटी बदमाश है, जो जिसको भी नेबर बदमाश है, टीचर बदमाश है, बॉस बदमाश है, जिसके लिए भी आपने कहा, वो सब आपके पास ही घूम के आने वाला है. बिकॉज हम जो दूसरों के लिए फील कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इट टू आवरसेल्व्स. ये वाली चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको फिर से पढ़ना है, आप फिर से समझिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम जो किसी और के ऊपर जज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, वो सारी चीज हम लोग हमारी लाइफ में वापस लेके आ रहे हैं. ठीक है. सेम वे if this is in continuation, whatever you feel about another person, whatever you think, वो सब चीज हम अपने आप को बोल रहे हैं कि कल अगर हमने किसी के लिए भी कुछ भी कहा, वो हम अपने लिए ही अट्रैक्ट करें हमारी लाइफ में. सो व्हाई शुड वी नॉट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड गिविंग लव? बिकॉज जब हम दूसरे जन को लव देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, तो मेरी लाइफ में भी वही आएगी. यस. There is only yes sorry, for the sorry. law of attraction. Yeah, just one second. And with Yeah. anything you don't love, simply turn away from it without judgment. And you won't include it in your life. ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइप की चीज है कि अगर हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, आज मैंने ये ट्राई किया, आज घर में कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा था. आई एम लाइक जनरली, आई थिंक यू कैन मेक आउट नाउ, आई एम अ वेरी एक्टिव, हाइपर काइंड, नॉट हाइपर, आई एम अ वेरी चुलबुला काइंड, नॉट चुलबुला. जनरली आई एम लाइक, थोड़ा सा हम बात करते हैं, तो ऐसे भी इतना भी नहीं करते हैं जितना यहाँ लगता है, बट आई टॉक. एंड कुछ सिचुएशन थी एंड आई थॉट कि अब हम बोलेंगे ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हम भी बिलो द लाइन चले जाएंगे, सिचुएशन भी गड़बड़. आई सिंपली आई सैट देयर फॉर 2 minutes, देन आई वॉक्ड एंड केम आउट ऑफ दैट रूम. तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. दोज हु डू इट लाइक सीरियसली अमेजिंग, आप लोग बहुत अच्छा करते हो ऐसा. देयर आर सम पीपल हु आर लाइक क्वाइट. कुछ होता है वो लोग चुपचाप रह जाते हैं. इफ यू आर वन ऑफ देम, देन यू आर लाइक सीरियसली ब्लेस्ड. एंड यही हमको रोंडा बन कह रही है. एंड एनीथिंग, with anything you don't love, simply turn away from it without judgment. ठीक है. and you won't include it in your life. it's like अगर आप उस शादी में गए जहाँ पे आपने वो साड़ी देखी थी और नेकलेस देखा था, वहीं आपने किसी को देखा जो बहुत ही सेक्सी ब्लाउज पहना हुआ है, या बहुत रिवीलिंग नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही अच्छे फिगर का है और उसने अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी है, लाइक एकदम फैंसी टाइप की, एंड यू आर सेइंग, अबाउट टू से, देखो तो आजकल कैसे कपड़े पहन के लोग आ जा रहे हैं शादी में, पब्लिक गैदरिंग्स में. डोंट से दैट. डोंट जज इट. सिंपली टर्न अवे. बिकॉज इफ वी आर डूइंग एनी ऑफ दिस जजमेंट और इफ यू आर पासिंग कमेंट्स जो हम लोग को लगता है बहुत हार्मलेस होती हैं, वी आर इंक्लूडिंग दैट काइंड ऑफ जजमेंट टू आवरसेल्व्स. ओके. अब बोलोगे नहीं मैं तो ऐसा पहनती ही नहीं हूँ, तो भी आप वो नहीं पहनते हो, लेकिन कुछ और ऐसा करते होगे जिसमें दूसरे लोग आपको जज करेंगे. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली टर्न अवे without giving any judgment, and then you won't include it in your life. Okay. Yeah. There is only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love, and you don't give them any feelings. Don't say no to the things you don't love, because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you're feeling bad about them. You are giving bad feelings, and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. You can't say no to anything, because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they're always late, it's so noisy in here, that driver is a lunatic, I've been on hold for so long. You are saying yes to these things, and you are including more of all of them in your life. Yeah. So turn away from. Yeah, just once again. So we have seen this first paragraph is quite simple. ये तुमको पता है. If we are saying no means हम लोग
अपने लाइफ में, इफ यू आर गिविंग नेगेटिविटी, हम लोग हमारे लाइफ में वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग बैड फीलिंग्स दे रहे हैं तो हम हमारे लाइफ में वो ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो नो वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है। ये तो हम लोग को पता ही है ना कि हम लोग को नो, नेगेटिव, कमती से कमती, ये वाले सारे वर्ड्स नहीं जानता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। ये हमारे हम लोग ने सीक्रेट मूवी में देखा हुआ था, सीक्रेट बुक में था, मैजिक बुक में था। नो यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है। इफ वी आर सेइंग नो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वाली जो चीज है वो हमको मिल जाएगी। अभी रिसेंटली आश्विन मैम ने इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था कि देयर इज ओनली पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड। जब हम ये ऐसी कुछ चीजें बोलते हैं ना, नो आई डोंट वांट हेडेक, तो क्या होता है, नेगेटिविटी नो वर्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है और बचता क्या है, आई वांट हेडेक, तो यूनिवर्स हमको हेडेक दे देता है। इफ आई से आई डोंट वांट पॉवर्टी, ठीक है, तो जो डोंट है वो नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है, बचता क्या है, आई वांट पॉवर्टी, तो हमको पॉवर्टी मिल जाती है। इसीलिए हम लोग को नो शब्द नहीं यूज करना है, हमको नो और जो भी इस टाइप के वर्ड्स होते हैं ना, द ट्रैफिक इज टेरिबल, माने ये जो आई डोंट वांट टू बी लेट एवर, या ये वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमको नहीं बोलना चाहिए। हमको सिर्फ वो ही बोलना है जो हमको चाहिए। तब क्या होगा, नेगेटिविटी के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पॉजिटिविटी वाले एरिया से हमको पॉजिटिविटी वाले वर्ड्स और जो हम चाहते हैं वो मिलेगा। Okay, so when we are saying such things that driver is a lunatic, I have been on hold for so long, तो मेरे को उस वाली यही वाली चीजें हमारे लाइफ में बढ़ती जाएंगी। Yeah, this was very nicely there in the secret book. Yeah. Turn away from the things you don't love and don't give them any feelings, because they are fine as they are, but they have no place in your life. See no evil, hear no evil, speak no evil. Maxim on the Toshogu Shrine in Japan, 17th century. Yeah, तो ये जो लाइन है ये आपको लग रहा है आपने कहीं पढ़ी है? See no evil, hear no evil, speak no evil. Yes. गांधी जी monkeys. Yes. गांधी जी। Yes. Yeah, but आप देखिए ये गांधी जी को भी इंस्पिरेशन ही मिला था, बिकॉज ये तो गांधी जी के बहुत पहले से लिखा हुआ है। दिस वाज रिटन इन द 17th century। बट बात तो सही है, अगर हम लोग बुरा बोलेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा कहेंगे तो क्या होगा, हमारे लाइफ में भी बुरी बुरी चीजें आएंगी, लोग हमारे बारे में भी बुरा बोलेंगे और बुरा कहेंगे, राइट। तो हम लोग को यही करना है कि ये जो सेम चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, ये बिल्कुल यही करनी है। इसमें एक और एग्जाम्पल बहुत अमेजिंग है, विच आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये फेस किया होगा। जिसको साउथ इंडियन नहीं आती है और हम लोग कभी साउथ में गए होंगे जहाँ पे इंग्लिश भी सपोज नहीं आती है, एंड यू वांट टू ऑर्डर समथिंग, तो बहुत इजी होता है क्या उसको ऑर्डर करना, खाने की चीज। स्पेशली आई थिंक जैनी लोग ने तो ये बहुत हो सकता है फेस किया हो कि नो अनियन, नो अनियन, हाँ, और पता चलता है कि वो अनियन सोच के अनियन ले आता है आपके लिए। हैज इट हैपेंड? ये रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा होता है ना, जहाँ पे नॉन वेज उसको समझाना, या इन अ कंट्री या इन अ प्लेस जहाँ पे उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती है, उस समय खाना नॉन वेज वेज समझाना तो सबसे चैलेंजिंग होता है। पता चलता है कुछ नहीं खाया, क्योंकि उन लोग के लिए तो फिश भी वेजिटेरियन होता है, फिश ऑयल भी वेजिटेरियन होता है। Has anyone faced this issue? Because I am a vegetarian. I have faced this issue in Thailand when I went in Thailand. So though I eat non-veg, but we were not able to adjust with the flavors over there. So I was trying to explain the lady over there that is this vegetarian? Is this vegetarian? She was like, yeah, vegetables. I was like, no, is this vegetarian? She's like, yeah, vegetables. I said, okay, get it. So finally, when she got, it had prawns and everything with lot of vegetables in that. So I was like, okay, chalo, theek hai. खा लेते kind of. Yeah, so but Even I have faced it. You have also faced it. Okay, so yes. उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता, उनके लिए फिश ऑयल एंड दे आर शॉक्ड कि वेजिटेरियन मींस नो एग्स आल्सो, उनको बिल्कुल कांसेप्ट इट्स क्रेजी। हाँ, तो ना तो ये सेम वे, तो जो हमको चाहिए होता है ना तो हमको वही बोलना पड़ता है। और ये सब आई थिंक ये हम लोग ने तो डेफिनेटली फेस की है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये इशू तो फेस किया ही है, और बाहर तो नहीं, इंडिया में भी फेस की हुई होगी। हाँ, कि अब तो फिर भी थोड़ा साल पहले और थोड़ा सा ऐसे चैलेंजिंग रहता था ये, अभी तो फिर भी सबको अच्छे से आती है इंग्लिश, माने काफी जनों को आती है। जो अगर कोई दूसरी वहां की लैंग्वेज नहीं आती तो एटलीस्ट इंग्लिश में इतना तो सब समझ ही जाते हैं। हाँ, और थैंक्स टू फोन अभी तो हम लोग सीधे फोटो दिखा सकते हैं, तो आप समझिए विजन बोर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ,
फोटो में दिखा दें, हैव यू नेवर डन दिस? तो व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड, हमने सोचा एग, आई आल्सो डोंट ईट एग, तो हमने सोचा एग को क्या बोलते हैं उस जगह की लैंग्वेज में बहुत जरूरी है। फिर आई थॉट क्यों, हम तो सीधे फोटो खींच लेते हैं ना, वो तो और भी अच्छा है, गूगल कर लो, एग की फोटो दिखा दो और ऐसे ऐसे कर दो तो और भी इजी हो जाएगा। तो इसीलिए विजन बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आया कि विजन बोर्ड में आप वो बनाइए जो आपको चाहिए, ठीक है? तो विजन बोर्ड सबने बनाना स्टार्ट कर दिया, उसके प्रॉप्स इकट्ठे कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, करिए नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को चाहिए ही है वो सब, ठीक है? तो विजन बोर्ड की तैयारी आप स्टार्ट कर लो, ताकि यूनिवर्स को जो दिख रहा है वो तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। यस, सो प्लीज कंटिन्यू। Instead, say yes when you see something you love. Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it, because then you are choosing it by giving love. Yeah, here again you see she has used all the 5 senses. What you see, when you hear, when you taste, when you smell, when you touch, वो हमारी है या नहीं है, ठीक है? तभी भी हमको उसके लिए yes बोलना है, and by saying yes means by giving it love, by appreciating it, by being in the positive zone about that particular thing, and then we are attracting it in our lives. Yeah. There are no limits, and everything is possible if you really want it, if you really desire it. There's no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. Yeah. So now Rhonda is telling us there are no limits. Everything is possible for the universe. And best देखिए, the supply is equal to the demand. कि माने अगर हमको सब्यासाची की ड्रेस चाहिए है और रुचि को भी चाहिए, आकांक्षा जी की को भी चाहिए, या हम लोग सबको 53 जन को चाहिए, अगर आप नहीं पहनते हो तो आपको मे बी अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चे के लिए, सबको भी चाहिए, तो भी बहुत सारी सब्यासाची की ड्रेसेस हैं। क्यों? हमारा सबका साइज अलग है, हमारा सबका टेस्ट अलग है, हमारे सबके प्रेफरेंसेस अलग हैं, तो हम सबके लिए है उसके पास, ठीक है? तो वो तो हम सिर्फ एक ड्रेस की बात कर रहे हैं। तो हम सबको जो भी चाहिए, जिस एरिया में चाहिए, देयर इज अबंडेंस इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी कम नहीं है। अबंडेंस का ऑपोजिट क्या हुआ? स्कैसिटी। कोई स्कैसिटी नहीं है यूनिवर्स के पास। क्यों? अगर आप बोलो, हम लोग ने तो एक ड्रेस का एग्जाम्पल लिया है, अब जिस एरिया में हेल्थ में हमको चाहिए है, मे बी आपको कोई दूसरा चाहिए। हाँ, मे बी आई वॉन्ट टू बी सुपर फ्लेक्सिबल, मे बी यू वॉन्ट टू रन 10 किलोमीटर, आई डोंट नो आपको क्या हेल्थ का एरिया में चाहिए, वो सब कुछ है यूनिवर्स के पास। मे बी हमको जो मनी के एरिया में चाहिए, हो सकता है आपको भी चाहिए, लेकिन फिर भी यूनिवर्स के पास इतना सारा है। मेरा जो ड्रीम हाउस है could be different from your dream house. The person I want in my life could be something different that you want. हर चीज दुनिया के पास है और अबंडेंस में है, ठीक है? तो कुछ भी लैक नहीं है। तो हमको जेलसी होनी क्यों चाहिए? जेलसी तो तब हो कि भाई 100 लड़कियां हैं और एक लड़का है, राइट? जैसे बोला है ना, एक है अनार यहाँ कितने बीमार वाला गाना है गोविंद वाला, तो तब कुछ स्कैसिटी की बात होती, तब फाइटिंग होती, बट ऐसा तो है ही नहीं। इतनी सारी चीजें हैं, हम सब के लिए, तब जेलसी होनी नहीं चाहिए। सिर्फ पॉजिटिविटी ही देनी है हमको और हम सबको वो मिलेगा, ठीक है? व्हेन पीपल सी अ लैक ऑफ एनीथिंग, इट सिंपली अ लैक ऑफ लव। अगर हमको कोई रिलेशनशिप में, कोई पर्सन में भी कुछ लैक दिखता है, माने उसकी कुछ क्वालिटीज हमको कम दिख रही हैं, तो वो भी क्यों कम है? क्योंकि मेरा फोकस रॉन्ग एरिया में। माय फोकस शुड बी इन द एरिया ऑफ दैट पर्सन्स पॉजिटिविटी। उस एरिया, उस पर्सन के अच्छी चीजों पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, ओके? एंड दैट विल इंक्रीज मोर लव इन दैट पर्सन। Okay, so I think should we stop here, or we can just, I think let's read, sorry, one more page, we can do this. Yeah, Your life, your story. You're creating the story of your life. So what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you're telling about yourself? Because that story is not true. Don't listen if someone says yes, says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any ways. Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it.
Don't listen if someone says you're not as valuable and worthy as the greatest human beings you've lived. Don't listen if someone says you are not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it's not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. Yeah. So now this when we are reading this, it is telling us that we have to believe in ourselves. ये तुम लोग को आ ही रहा है guess समझ में कि हम लोग अगर किसी की बात सुन के अपने को थोड़ा सा लो या थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगेंगे तो वो हमारी फॉल्ट है, बिकॉज वी आर चूजिंग टू बिलीव दैट वी ओनली हैव टू डू और फील व्हाट वी वांट. हम लोग को दूसरी जन की बात को सुन के किसी और को बाद में हम लोग ब्लेम करते हैं ना. दिस इज व्हाट वी डू कि छोटे में मेरे को ऐसे नहीं हुआ, मेरे को इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया. देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शिफ्टिंग द ब्लेम फॉर आवर करंट सिचुएशन. वो नहीं करना है, बिकॉज वो करने का मतलब है कि हम किसी और पे डालें, बट एक्चुअल में तो हम ही ने चूज किया है ना. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डन, व्हाट वी आर डूइंग इज आवर चॉइस. तो हमको ये नहीं करना है. एंड दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is telling us in this whole paragraph. If we have been listening to the others, if we have been thinking about the others कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, और हमारी लाइफ हम लोग दूसरे तरीके से जी रहे हैं, तो वो गलत है. हम लोग हमारी लाइफ बनाए हैं. लाइफ फॉलोज यू. कर्मा हमारे हाथ में है. जो हमने चूज किया है, जो जिस चीज को हमने लव दिया है या लैक ऑफ लव दिया है, वही हमारे लाइफ में है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. वी कैन नॉट पुट द ब्लेम ऑन एनीथिंग एल्स. वी शुड बी डूइंग व्हाट वी लव टू डू. Okay. The force of love says, whatever. Sorry, जी मैंने आपको भूल से म्यूट कर दिया. I was wanting to mute. Okay. Yeah. Okay, I'll start again then. Yeah. The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you're not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to be, do or have, and you will receive it. Does that say you're not good enough? You're worthy and deserving just as you are. You are good, right? You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. Yeah, so same way, like how nicely she's writing that whatever we give, we receive. So it is not saying that कि हाँ हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा. वो तो ये कह रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम जो भी चाहेंगे वो हमको मिलेगा. हम जिसको लव देंगे वो हमारे लाइफ में आएगा. क्या तो हम जो चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब हमको मिलेगा. वी ओनली हैव टू चूज दैट. ओके. एंड ये सब कुछ नहीं बोल रहा है कि हम लोग उसके वर्दी हैं कि नहीं है. इट इज ओनली सेइंग दैट वी हैव टू चूज व्हाट वी वांट. वी आर गुड इनफ नाउ. एंड अगर हम लोगों ने कुछ किया है, लाइक सी ये कितनी बहुत, ये सबसे अच्छी लाइन लगी थी मेरे को. यू नो आई स्टिल, अभी हम बहुत बार आई हैव शेयर्ड दिस इन द अर्लियर सेशंस. इफ यू फील you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. माने अगर हमसे कुछ गलती हो गई, जैसे ठीक है हमने कुछ मिसबिहेव कर दिया, जैसे पेरेंट्स के संग कभी हो जाता है ना, माने बच्चे लोग कर देते हैं पेरेंट्स के संग. तो अगर हमने उसके माने, और ये कब हुआ, इट्स लाइक व्हेन आई एम ट्राइंग टू अट्रैक्ट द ड्रीम्स, उसके लिए तो हम लोग को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी सोचनी है ना. तो जब हमने कुछ नेगेटिव किया, ओनली इन द लॉ, only in the eyes of the law of universe, okay, only for that, not in my eyes of my mother or my father, not only for my mother. अगर हमने कुछ गलती की और हमको रियलाइज हो गया, गलती की मतलब हम नेगेटिविटी में जा रहे हैं, हाँ, और हमको तुरंत या जब भी रियलाइज हुआ एंड हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से गलती हो गई, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे को जो टिपिंग पॉइंट था या मेरी पॉजिटिविटी वाली ऑरा थी या जो फ्रीक्वेंसी थी, उसमें वो मेरे को नेगेटिव नहीं काउंट करेगी. उसमें मेरे को एब्सोल्यूशन मिल गया, माने उसने मेरे को फॉरगिव कर दिया उसमें. ठीक है. और जो मेरे मम्मा के संग हुआ,
उससे वो अलग साइकिल चल रहा है, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ड्रीम्स वाला साइकिल अलग चलेगा। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कुछ नेगेटिविटी हुई और हम लो बिलो द लाइन चले गए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही बोलेगा ना कि मेरे को मेरी चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ मेरे लाइफ में वो घूम के आएगा वापस वो नेगेटिविटी। अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से गलती होगी, पहले रियलाइज किया फिर एक्सेप्ट किया, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन माय ड्रीम इक्वेशन मेरे को फॉरगिव कर देती है, ठीक है। और मेरी मम्मा मेरे को सॉरी बोलने के बाद फॉरगिव करे कि नहीं करे वो उनका मन है, वो उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ लेना देना नहीं होता है। Okay, so we have to see what we are choosing. We are only supposed to focus on the things that we love. Okay, so this is why my life is my story. And हमको सबको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए जो इस पूरे पैराग्राफ में हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। You know, this one, don't listen if anyone says that you are not as valuable and as worthy as the greatest human beings. कि माने हम जो चाहें, if I want to be that greatest human being, I can be. मेरे को सिर्फ उसको चूज करके लव देना है। हम जो बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जैसी भी क्वालिटीज चाहते हैं, मेरे को उसी को लव देना है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ओके, सो दैट इज हाउ आई विल क्रिएट माय स्टोरी। आई थिंक द नेक्स्ट थिंग इज ना क्वाइट लॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक वंस हियर, जस्ट वन सेकंड। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा ये वाला, दिस इज 4 pages, so I think let's take it tomorrow. Okay, this is 1111 na. Yes, I think let's take it tomorrow. This is 4 page one. This the real world is for 4 pages. Okay, so thank you Deepa ji for reading so nicely, like really बहुत अच्छे से हमको Welcome. very Thank you. Beautiful Thank reading. you, Deepa. Beautiful reading, Very Deepa. nicely Thank read. you. nicely. Excellent. I love Thank it. you so much. Yeah. So yes, let's do the gratitude, huh? Before we, forget. Okay. Before not we forget, before we run away. Yeah. So let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great and supreme power who has blessed us with abundance, the wonderful 5 elements of nature, who has filled our life with happiness. Thank you for the good health of my family members, my loved ones, and my good health. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone for being here and all the positivity that you bring to my life. Thank you दीपा जी आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया। सब लोग करते हैं, बट आज आपने थोड़ा सा इतना ऐसा लगा था ना, एकदम इम्पैक्टफुल, एकदम सही जगह पे Smooth, beautiful. Thank you. know. Thank you so much. I Thank have you. a sharing. want I to- have a sharing. This thing. Deepa, we want to Priya? see you. Please Yes, switch actually, on I your was camera. about to I say that. cannot switch on. Very bad, Deepa, very not bad. put a face pack, हाँ face pack नहीं कराए ना तब तक ठीक है। No, I'm good like this. Thank you so much. हाँ, I have a sharing. yes Rama. कि today one circumstance situation ऐसी आई कि I imagined someone in front of me, some family member, to be riding on the wild horse. Okay. Ah, cool. And I immediately, like yesterday, I told you, I was laughing when I was reading in between, trying to imagine that only. And वही situation आज आ गई. So instead of that, getting that normal irritation or saying something back or something, I just I just kept on, shaking my hand. Oh, he's on a horse. He's on a horse. And there goes. Ah, very nice. So अच्छा रहा. Your reaction was good. Very, Nice. very good. I mean, yes, I think this is one of the perfect things that I'm good. I can catch it up. Ah, wonderful. That Thank was you, very Ramaji, for this sharing. So let's all do that. Let's do this imagination कि कोई दूसरा जा रहा है, उसको या तो खींच लो, नहीं खींचना भी नहीं चाहिए ना ऐसे सिचुएशन में, वो खुद ही आ गया उतर के तो बेटर। Yeah, so let's imagine that and feel positive, because ultimately Yeah, I mean, at least you don't increase that situation into a worse kind of a thing. One of you, बोलते हैं ना, एक चुप 100 को हराए. भाई, either you remain quiet types, and I'm not the quiet types one. I'm generally the one who generally says something and situation gets worse. So it was better कि I have started adopting this thing. कि best is कि मैं खुद हंसने लग जाती हूँ कि yes, fine. बस, I think I've caught on this one very good thing you've given me. thank you. Oh, this book has given. Yes, this book has given. Yeah. Yeah. Rhonda one has given. You have given everyone. Yeah, enjoy. Thank you.
Yes. So any other sharing or any question? प्रिया, मेरी भी एक शेयरिंग है। Yes, Rashmi जी बोलिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मेरा चेक अमाउंट मुझे मिल गया, जो मैंने चेक यूनिवर्स के लिए जो लिखा था, और वो वहां से मिला जहां से मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां से मुझे वो अमाउंट मिलेगा। Wow, awesome, very nice. और मैंने 25,000 ही लिखा, 25,000 लिखा था और मुझे मिला 28,000। Wow, Super. very nice, very good. Yeah, तो आपने अब जो चीज लिखी थी जिसके लिए वो लेनी है अब आपको। हाँ जी बिल्कुल 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 लेनी है। वंडरफुल। और सबको थैंक यू करना है, ठीक है, वो चीज के लिए जिसने दिए, हर चीज, हर उस चेन ऑफ सीक्वेंस सबको थैंक यू करना है। ओके, हाँ यस वंडरफुल। अब आप दूसरा चेक लिख लीजिएगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी जस्ट मुझे मतलब इतने सेशन के पहले मुझे मैसेज आया कि इतना डिपॉजिट हुआ, और मैंने कभी सोचा नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने 3-3 4-4 बार उसको पढ़ा, मैसेज को रीड किया कि सही में हुआ है क्या, सही में हुआ है क्या, ऐसा मुझे वंडरफुल वंडरफुल। Very nice. Lovely. वेरी नाइस। और कल सुबह ब्लेसिंग्स लिख के फिर से अब आप एक चेक रख ली, आइटम सोच के फिर से एक चेक लिख डालिएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू एंड मोर मैजिक रश्मि जी। ओके यस यू। थैंक यू। सो एनी अदर शेयरिंग? And Tulsi, thank you so much for that amazing video that you sent, you know, Yeah. with music, perfect song. बहुत अच्छा लग रहा था वो. Very nice. Thank you. And Thank you, Tulsi. So thoughtful of Tulsi. So thoughtful of her. Yes. Thank you. Yeah. I And very love doing soon all these. he's professionally starting, you know, making vision boards. हाँ, तो आप लोग उसको अपना vision बता दो, dreams. मेरा बना दे सबसे पहले. She charges very nominally. Okay. तो आप उसको अपना आइटम जो भी चाहिए भेज दो, and she will make a dream board for you. नहीं seriously, ठीक है? उसका भी विजन जब उसने बनाया, उसके बहुत सारे मैजिक मनी वाली चीजें हो गई थी. Okay, so you can ask her. Okay, yes, yeah. So any other sharing? Priya, I have one small query. Yeah. Like in my dream, if that dream is related to somebody, it's like suppose it's related to my child, and I have a vision for that. I'm visualizing, but the child doesn't feel for it. Just so, how do I? आप उसको विजुलाइज करते रहना है, ठीक है, मेन तो यही है। और आपको ये ना थोड़ा सा हो जाता है, चाइल्ड का कोई एक अलग ड्रीम है क्या? नहीं, वो ड्रीम है, बट मैंने थोड़ा उसको ऊपर सुपरलेटिव में लेके गई हूँ ना। तो कोई बात नहीं ना, आप उसको पावर देते रहिए। आपने ड्रीम अगर उसका देखिए, एक होता है कि नहीं आपको कश्मीर अच्छा लग रहा है और उसको चेन्नई अच्छा लग रहा है, सपोज, ठीक है, तब तो एकदम ही ऑपोजिट डायरेक्शंस हो गए। बट आपको कश्मीर अच्छा लग रहा है और उसको शिमला ही अच्छा लग रहा है, तो वो चलेगा। आप अपने कश्मीर को पावर देते रहिए, ठीक है, उसको विजुलाइज करते रहिए एकदम। आप अपना काम करते रहिए, यू गिव ग्रेटिट्यूड और काम हो जाएगा। यस यस एग्जैक्टली, आप ग्रेटिट्यूड देते रहिए। यस, ग्रेटिट्यूड तो आई थिंक अंडरस्टूड ही है ना, वो तो देना ही है। हाँ यस यस एकदम, बिकॉज ग्रेटिट्यूड ही है जो फ्यूल कर रहा है आपके ड्रीम्स को। ओके, उसका ग्रेटिट्यूड तो इन जनरल ना, जैसे गोपदी आप जो करते हैं, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, कि मैं हर किसी के लिए एक जो ग्रेटिट्यूड, एक ब्लेसिंग जिस फील्ड में चाहिए उसको फिर ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा, पर्टिकुलरली उसको भी। एंड जनरल में ये चलता रहता है ऐसे साथ। लाइक आपको अपने बच्चों की जो अच्छी क्वालिटीज है उनको तो ग्रेटिट्यूड देते ही रहना है, ठीक है। और स्टडीज के लिए है तो उसके लिए माने आप, आई डोंट नो, आप जो भी एज का बच्चा है उसके लिए आपको और उसके क्वालिटीज को ग्रेटिट्यूड देते रहना है। ओके यस, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या वो जो मैजिक चेक अपने लोगों तो मैजिक वाले क्लास में किए थे, वही वाला चेक का बात हो रही है, या इस पावर में भी कुछ वही मैजिक कंटिन्यूएशन है ना मैजिक। तो जैसे जैसे मैजिक होता है। नहीं, मेरे को लगता है कि ऐसे कि मैजिक क्लास करना बुक जरूरी है, इसका मतलब। वो आपने अभी की नहीं है? नहीं, मैंने कर ली है। मैं तो आपने सबसे की है स्टार्टिंग में यही बात मृणाल के साथ की है। हाँ,
नहीं वो तो देखिए करते नहीं, रहना मैंने चाहिए। मृणाल के साथ नहीं की, मैंने स्वर्णा दी के साथ की थी। अच्छा लेकिन हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसे, क्योंकि इसमें पूरा पावर बुक में पूरा मैजिक बुक का आ रहा मैजिक ही है। पूरा ही है। इनफैक्ट आप देखिए ना, 100% है कि मैजिक बुक भी करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए पावर बुक इन्हें लिखी थी रॉन्डा बर्न ने, लेकिन क्या हुआ था वो देखिए बहुत सिंपल समझने वाली बुक तो नहीं है, है ना। कितने बार पढ़ते पढ़ते तो लगता है क्या पढ़े, फिर से पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें। तो उसको जब लोगों को, आई थिंक बाकी दुनिया को भी ऐसे ही लगा होगा, तब उन्होंने मैजिक बुक लिखी, थोड़ा सा उसको सिंपल करके कि कैसे उसको हम लोग अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए। बट मैजिक बुक करने के बाद जब आप ये बुक करेंगे या कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा आपकी फीलिंग्स तो ग्रैटिट्यूड के लिए और बढ़ रहे होंगे, या पॉजिटिविटी में रहना है, एकदम एकदम ये और तो इसीलिए ये ये एकदम सही है, सही। हाँ इसलिए Absolutely true. Yes. सही है। yeah. Thank you, Priya. Yeah, thank you so much. So Priya, one question, Priya. yes, Kalaji, बोलिए। See, if it is our situation, we say कि हाँ हमारा हो गया है, I have done it very well, मेरा अच्छा हो गया, like that. Suppose it is for somebody else you are praying, for your child or for your mother's health or something. So how will you pray? Suppose your child is having an exam or an interview, he's going to face it. So how do we pray or show gratitude for that? Yeah, exactly. अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ठीक है, so what you have to do is like I'm so thankful. या नहीं, पहले तो ऐसे ही स्टार्ट करना है। अगर आप ड्रीम लिख रहे हो, शॉर्ट टर्म ड्रीम भी है, तो आप ये लिख लो, थैंक यू आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट माय सन हैज क्लियर्ड दिस इंटरव्यू एंड ही हैज गॉट हिज ड्रीम जॉब ऑफ दिस मच सैलरी। ठीक है, बेस्ट तो रहेगा कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लिखो, वो सबसे अमेजिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, यू नो दैट मैग्निफिसेंट प्रैक्टिस वाला आउटकम, सॉरी मैग्निफिसेंट आउटकम वाली प्रैक्टिस, वो आप पढ़ के वो आप करो। नहीं तो ड्रीम में आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आप किसी के हेल्थ के लिए करो तो सेम वे, थैंक यू आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय मदर इज परफेक्टली फिट एंड फाइन, शी इज डूइंग हर नॉर्मल एक्टिविटीज, आई एम हैविंग टी विद हर। माने जैसे पूरा आप ऐसे लिखते हो ना, वैसे ही पूरा आपको विजुअलाइज करना है इन द प्रेजेंट, दैट शी इज फिट एंड फाइन एंड यू आर थैंकिंग फॉर हर हैप्पी एंड हेल्दी स्टेट। ठीक है, ऐसे लिखना उसको। हेल्थ का हो गया, इसका हो गया, और रिलेशनशिप का भी करना है तो उसमें भी आपको ऐसे ही लिखना है, ड्रीम में बना के लिखना है या मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए लिखना है। तो ये दोनों बहुत ही, मैग्निफिसेंट आउटकम तो एकदम सुपर पावरफुल प्रैक्टिस है। आप अगर नहीं करते हो तो आप वो चैप्टर पढ़ के मैजिक बुक का आप उसको स्टार्ट कर लीजिए और अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। She is a champion in that and many of us do that quite often. Yes, Sangeeta ji. Yeah, Priya, I have a sharing also. Yes. Yeah. So Because you were mentioning. तो Kalaji, you are clear with this? आपको ऐसे ही लिखना है, मैग्निफिसेंट आउटकम लिखिए या ड्रीम में उसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ओके। नहीं तो कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, यस यस। Yeah, Kalaji, magnificent outcome is a great practice. I was just seconding on what we are saying because I kind of do it on every alternate day basis, and trust me, it's like that's my favorite practice. अभी परसों ही जब किसी ने वो ग्रुप में वो फोटो डाली थी ना, let's drive down to the mountains, and everyone was like, I'm in. उस दिन 5 o'clock सुबह मैंने पता नहीं क्यों मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखा था that I'll spend some quality time with my husband because down line 1-2 महीने से I'm so much into these classes that actually I'm not being able to shell out a lot of time out of daily routine. And that day वो picture आने से पहले the weather was very nice here, and I just asked him, I said lockdown है, we were at home, I said let's go for a bike ride ना, college time बहुत दिन हो गए, and he immediately said yes. And it was drizzling and we went for a nice 15-20 minute ride. So it was so awesome. मेरा सुबह लिखा था मैंने and कुछ घंटों में वो हो गया. And every day कुछ होता है. Every day magnificent outcome works. And today very nice Ruchi. Like seriously, जो भी नहीं करता है ना magnificent outcome, आप ट्राई करना स्टार्ट करो, आप रुकोगे ही नहीं, आपको लगेगा अरे इसमें भी कर लेते हैं उसमें। Yeah, so true. बहुत लगता है सब हो जाएगा। And today something happened with the me. word itself is very captivating. Yeah, for every yeah. little bit, you know, it's like magnificent outcome. Yeah. It just comes out. Yeah, एकदम। हाँ, मेरे संग क्या हुआ? Sorry. ये मैग्निफिसेंट
आउटकम कैसे लिखना है, मेरे को इसके कुछ बताइए। हम जैसे लिखते हैं वो बताते हैं, बुक में आप पढ़ के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। एंड बाकी लोग भी बता सकते हैं, लाइक आई राइट लाइक दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू, जो भी आपकी सिचुएशन है उसका आपको क्या रिजल्ट चाहिए कि वो हो चुका है। सपोज इट्स फॉर अ पार्टी, सपोज इट्स फॉर अ डिनर एट होम, एनीथिंग, कि उसका आपको आउटकम क्या चाहिए। ओके वो आपने लिखना है, जैसे कि वो चीज हो गई है और आपके मन के हिसाब से हो गई है। ओके वैसे लिखना है। लाइक सपोज इफ आई हैव टू राइट फॉर दिस thing, I'll be, I'm thank you thank you thank you, I'm so grateful for the magnificent outcome to this Zoom session where everyone had their cameras on and everyone had lots of sharings, you know, and the session was full of positivity, कि माने जैसे वो हो चुकी है और कैसी हुई है जैसी हम चाहते हैं, that way। ओके ऐसे लिखना। और आप किसी चीज प्रिया, सॉरी और अगर आपको लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, बुक बोलती है लिखना तो बेस्ट होता है, आई फील राइटिंग इज द बेस्ट। और कितने बार होता है कि आपको टाइम नहीं मिला लिखने के लिए, आपको तुरंत ही है, तो भी आपने मन में उसको वैसे ही सोच लिया और थैंक यू कर दिया, एंड आप जैसा आउटकम चाहते हो वो आपने मन में बोल दिया, ठीक है, दैट वे। बट यू हैव टू फील इट कि हाँ वो हो गया एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। मैम एक सेंटेंस हिंदी में बताइए मैग्निफिसेंट आउटकम का। हम आपको भेज देंगे क्लिक करके, मेरे को आता नहीं हिंदी वाला। तो सी आपको करेक्ट बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ धन्यवाद धन्यवाद इस बेहतरीन परिणाम के लिए, ये बोलती थी ना। हाँ समथिंग, हाँ जो भी। हम आपको बुक का हिंदी पीडीएफ जो है, आपके पास है वो बुक का हिंदी पीडीएफ मानसी जी? नहीं है मैम। नहीं है, ठीक है, तो हम आपको पूरी बुक भी हिंदी में शेयर कर देते हैं, ठीक है। और प्लस आप उसमें से ढूंढ लीजिएगा, और बाय चांस मेरे को टाइम मिल जाएगा तो हम आपको स्क्रीनशॉट भेजेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम का हमको चैलेंज चल रहा है, ठीक है, आई विल डू इट। प्रिया जी, आउटकम मॉर्निंग में लिखना है क्या? ऐसा नहीं है, रुचि जी सुबह सुबह उठ जाती हैं 5 बजे डेली या 4 बजे, तो वो लिख लेती हैं। आपको जब देखिए, हम तो जब उठते हैं हम तब लिखते हैं जब हमको चाहिए होता है। इट्स लाइक नॉट ही इज मेरे को तो जब वो इवेंट में आउटकम चाहिए तब मैं लिखती हूँ, मतलब इवेंट इन द सेंस जो चीज में चाहिए मैं तब लिखती हूँ। राइट करेक्ट आल्सो, कि जैसे अगर आज मेरी मीटिंग है तो हम मे बी मीटिंग में जाने के पहले ही लिख लेते हैं, या सुबह लिख लेते हैं, जैसे आपका मन हो। ओके आप जब आपको मन में आ रहा है तब आप लिख लो। अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो आप मन में सोच भी सकते हो, बट लिखना इज वेरी पावरफुल। तो आई फील राइटिंग इज द बेस्ट। मोस्टली डन इट। इसमें एक क्वेरी है, लाइक इफ यू आर राइटिंग कि जब होने वाला है उसके पहले, तो कोई चीज पता है, जैसे एग्जाम इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 1 मंथ, सो पूरा 1 महीना हम उसको रिपीटेडली लिखना चाहिए या एग्जाम के टाइम में? मतलब नहीं, हम तो इतना पहले तो हमने कुछ नहीं किया, उतना पहले होता तो आप उसको ड्रीम में लिख दो। वो तो ड्रीम हो गया ना। नहीं वो उसके लिए नहीं, ड्रीम के साथ साथ मैग्निफिसेंट में नहीं, होने के पहले लिखना है। और मैग्निफिसेंट आउटकम तो जस्ट जैसे वो तो मेरे ख्याल से आप 1 महीना पहले बोल रहे हो ना संगीता जी, वो तो ड्रीम में लिखना। हाँ जी, नहीं ड्रीम में तो मैं लिख ही रही हूँ वही, इट कोइंसाइड्स। तो ड्रीम के साथ साथ मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखने से उसका पावर बढ़ेगा क्या? मेरे को लगता है मैग्निफिसेंट आउटकम जब वो एग्जाम देने जा रहे हैं ना उसके 1 दिन पहले ही लिख दीजिए, ये लिखिए, तब वो बेटर रहेगा। that they are writing their exam, they have written their exam so well, ये आपने लिखा। फिर जब वो उसी सेम चीज की ट्यूशन के लिए जा रहे हैं फिर आप लिखिए, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आप उसके लिए लिखिए। इट शुड नॉट बी की फाइनल रिजल्ट का आउटकम, वो उसकी छोटी छोटी चीजें करते जा रहे हैं, all related to that particular dream, you can start writing for that, कि उसका ट्यूशन क्या है, उसका एग्जाम देने गए, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो यू आर ब्रेकिंग दैट थिंग इनटू स्मॉल इवेंट्स, उसमें आप लिखते जाओ। दैट्स व्हाट आई वुड हैव डन। या इट्स लाइक, अब जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट है, तो अगर हम ये लिखें कि प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, वो ड्रीम में है, बट हर दिन जो चैलेंजेस फेस करते हैं कि मिस्त्री आया कि नहीं, क्लाइंट से पेमेंट टाइम पे मिला कि नहीं, कि मीटिंग अच्छी सी जाए, वो सब हम मैग्निफिसेंट आउटकम में लिखते हैं। आई हैव ब्रोकन दैट बिगर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल थिंग्स, दैट इज हाउ आई डू इट। Okay, wonderful. Thank you for telling this. Thank you. मैम फिर ब्लेसिंग जैसे हुआ ना, जो सुबह हम ब्लेसिंग लिखते हैं वैसा। हाँ सॉरी मानसी जी, आप बोल रहे हैं? ब्लेसिंग जैसे हुआ ना, जो सुबह हम ब्लेसिंग लिखते हैं 10, तो उसमें ही आउटकम लिखने हैं? नहीं मैम
आप कहीं भी लिख सकते हो। देखिए उससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी डायरी में लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो मैग्निफिसेंट आउटकम, उसमें लिखना जरूरी नहीं है। देखिए फिर से हम आपको बताते हैं, ब्लेसिंग्स अलग हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कैसे हो गया। ब्लेसिंग्स मतलब जो आपको चीजें मिली हुई हैं आपके पास ऑलरेडी, भगवान आपको दे चुके हैं वो चीजें, वो ब्लेसिंग्स हो गई, ठीक है। और मैग्निफिसेंट आउटकम, ड्रीम्स, डिजायर्स, ये सब वो है जो आप चाहते हैं आपके पास आए। ओके, सबको ये क्लियर है ना? आई थिंक ये कल भी परसों भी किसी को पता ना। Can I say something? एक बार बोलो। I think इसमें confusion इसलिए है like when we are talking about na, like write our blessing and write something what we want about, like as you said that my brother, I thank you for my brother because he's very sweet and nice, right? This is the example you had given. So Yes. I think वो ना Can I say something? थोड़ा सा Can I उसमें say एक something, Priya? yeah, one thing let me complete. उसमें क्या हो रहा ना, I think what happens, like as I said, I gave an example that I am thankful for my staff who is working in my office, but I have also want that they should work very nicely. So I write as a dream that I am thankful for my staff because they are very hardworking and very intelligent and smart workers. तो वो दो चीज में शायद वो confusion हो रहा है कि because hardworking, smart working is my dream part and I'm actually thankful for the staff which I have. That is a blessing. तो शायद इसलिए वहां पे थोड़ा सा confusion है, ऐसे मुझे लगता है। ओके, अच्छा। I feel कि manifest मैं उसमें ये है कि suppose if I'm baking a cake, तो पहले से मैं manifest करती हूँ कि मैं ये केक बनाने जा रही हूँ and it is going to come out very good. It's going to come out very tasty. Suppose I'm going to the bank and मैं वो बोलूँ कि मैं बैंक जा रही हूँ, मुझे कोई लाइन नहीं मिले वहाँ पे और मेरा काम फटाफट से हो जाए. That is, हाँ, I am going to meet my friend. I hope मैं उसको मिलूं तो वो बहुत अच्छे से पहले से like बहुत अच्छे से मेरा उसके साथ में बॉन्डिंग हो, अच्छे से हम टॉक करें, अच्छे से हमारा रिलेशन हो. I think that is manifesting, right? Perfect. Magnificent outcome का तो ये perfect examples आपने दे दिए सारे, कि राखी है घर पे, सब लोग आए हैं तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है। आप कुछ शॉपिंग करने गए हैं which you were wanting to, you can पहले से ही बोल दिया कि ये मिल गया मेरे को, that way something important जो for the exam also, no? Yeah, could be an exam also. Sangeeta ji was asking. हाँ हाँ एकदम, same way that exam अच्छा होएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा like that. So पहले से वो मैनिफेस्ट कर दिया. हाँ हाँ, देखिए एग्जाम होगा तो एग्जाम अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा तब रिजल्ट के टाइम के लिए अलग करना पड़ेगा। मेरे को मैग्निफिसेंट आउटकम ये लाइक समथिंग आई एम गोइंग टू डू इमीडिएटली, लाइक आज ही करने जा रहे हैं तो हमने उसके बारे में लिख दिया, समथिंग लाइक दैट। या एंड ड्रीम्स एंड ब्लेसिंग्स, मानसी जी ब्लेसिंग्स में आप जो लिख रहे हो वो आपके पास है, आप मे बी उसमें एक दो क्वालिटी और एक्स्ट्रा मिक्स करना चाहते हो, ठीक है, तो वो चलेगा। मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया जो आपका होने वाला है अभी, जैसे हाँ मैम मैं वही पूछ रही थी कि इस बुक में लिखना है कि अलग बुक में लिखना है वो। देखिए अगर आप रेगुलरली लिखते हो तो अलग ही बुक में लिख लो, नहीं तो इसी बुक में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ। प्रिया जी योर जो ब्लेसिंग्स बोला वो तो ग्रैटिट्यूड भी हो गया। हाँ हाँ, ब्लेसिंग्स तो ग्रैटिट्यूड ही है, द सेम थिंग। या यस, आप अलग बुक भी बना सकते हो, सेम भी लिख सकते हो। मैग्निफिसेंट आउटकम क्या होता है, जनरली कितनी बार मेरे को ऑफिस में बीच में भी याद आता है, ठीक है, तब मेरी ब्लेसिंग्स डायरी तो घर पे रहती है, तो हम मेरी वहां पे हमने एक अलग डायरी बनाई हुई है, उसमें लिख लेते हैं। कभी भी माने हमको किसी को ग्रैटिट्यूड देना है, सडनली हमको ध्यान आया कि इस क्लाइंट के संग जा रहे मीटिंग के लिए जाने वाले, तो चलो पहले से उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर दें, या कुछ कंप्लेंट हो गई है भूल से तब भी ग्रैटिट्यूड कर दें, तो वी कैन डू लाइक दैट। तो आपको अलग डायरी बनानी है तो आप वो भी बना लो, उसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। I think magnificent outcome की मतलब supposing like you written it say on a piece of paper also, आप ऐसी जगह हो या ऐसे आपके पास, you can write it anywhere, उसको कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि रखने के लिए, मतलब you can keep it for your memo for your sake, अपने लिए क्या लिखा था फील गुड फैक्टर के लिए, लेकिन उसको शायद once it is done over उसको थैंक यू बोल दिया and it's done। जबकि ब्लेसिंग्स वगैरह हम लोग रखते हैं ठीक से, चेक है ठीक से, एवरीथिंग। मैम इसका मैजिक बुक में लेसन है क्या? हाँ मैजिक बुक में लेसन है इसका, बहुत अच्छा है। यस, या लेट मी फाइंड इट, वेयर डिड आई कीप माय बुक हियर। प्रिया जी व्हाट्सएप में एक मैसेज आप एग्जांपल लिख के इसका बताइएगा ना। एग्जांपल लिख के हम आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना, उसमें पूरा बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। लेसन हाँ कौन से नंबर का लेसन है खाली बता दीजिए। हाँ ठीक है, हम दोनों बता देंगे, ठीक है। ओके ओके।
Yeah. Okay. Yeah, one thing like you said that if हाँ. you're going with a client and किसी कुछ बुरा ख्याल आ गया तो you immediately say gratitude, right, for it? Yes. Or Yes. write gratitude. So हाँ. what do you exactly तुरंत write? immediately तो नहीं लिख देते हैं, ठीक है, honestly भी But बता देते हैं. what do you हाँ. write immediately अगर ऐसे correct करना हो Anything तो? about him. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Okay. thank you, thank you, thank you, God. I'm truly grateful that this client is so wonderful. He gave me this project. सच है ना कि इतना wonderful है, उसने मेरे को project दिया है. Thank you, God. I'm so grateful that I have, that he has paid me advance. Thank you, God. I'm so grateful that he has given me this work. Thank you, God, that he has such a good place, such a prestigious project that he has given it Dreams to के me. pattern में लिखना है ना? Dreams के pattern में. ड्रीम्स के Okay. पैटर्न में, ड्रीम्स के पैटर्न में नहीं, ब्लेसिंग्स के पैटर्न में, कि ये सब काम तो मेरे को मिल चुके हैं उससे, ठीक है, और Right. हमने कुछ कंप्लेंट कर दी कि क्लाइंट कितना काम करा रहा है मेरे से, कितनी ड्राइंग्स करवा रहा है मेरे से, सपोज आई हैव रिटन दिस, हाँ, कि सुबह सुबह से मैसेज आ जाता है, सुबह सुबह से कॉल, इट्स लाइक इट हैपेंस ना समटाइम्स, कि कितनी बार भूल से कंप्लेंट निकल जाती ना मुंह से, ह्यूमन है, तब जैसे लग गई कंप्लेंट, हमको लग रहा कि नहीं कंप्लेंट हुई है और कुछ उसका रिएक्शन हमको दिख रहा है कि यार क्योंकि मैंने आज बहुत चिल्ला चिल्ली की है काम के लेके, आज बहुत I had a very stressful day. So I have shouted like it was beyond my control today. Nobody was listening, nobody was solving my issues. So I think I should do it this practice today. Yes, so what you can do is you can just write about your work, माने just treat your work as a blessing, कि क्यों वो blessing है, regularly salary आ रही है, salary मिलने से you are enjoying yourself, having a luxurious life, you've got a name, fame, whatever because of your work. Just keep on writing the good things. Over the years you've got so much appreciation for the work. जो भी माने काम को लेके जो भी अच्छी चीजें लग रही है या जिसके बारे में नेगेटिव बोला है वो पूरा लिखते जाओ. In the blessings we can write. Yes, yes. Not necessarily in the blessings, but anywhere you feel कि you are not going to throw it away immediately. ठीक है? Okay. Yeah. I think it's best. I have made four copies, 4 registers. एकदम बच्चों वाली classmate की जो आती है ना एकदम वही वाली. और मैंने एक स्टिकर चिपका दिया. One is blessings वाली. उसमें one is concentrated gratitude. मैं वो एक अलग बना रखी हूँ. हाँ, वो concentrated gratitude जो रामा जी बोल रही हैं. And concentrated and this kind of negative में मैंने एक पीछे से negative वाली लिख रही हूँ. Negative situation या जैसे अपने बोला ना कहीं complain कर दी तो उसके बदले में 10 blessings. या negative situation के भी against the same thing. It comes to the same thing. You feel a negative situation about something or a complaint. उसके लिए you have to write 10 good things about a person or a situation or a project or whatever you said client. ऐसे करके 4 अलग अलग, एक मेरे लिए सिंपल है जिसमें मैं कोई भी पॉइंट्स लिखती रहती हूँ. जैसे मैग्निफिसेंट आउटकम हुआ, कभी कोई चीज याद आ गई. 5 unusual things आपने बोला है ना, power words है, anything like चुटपुट जो बातें होती रहती हैं, डॉट एंड सर्कल, कुछ भी, जस्ट जनरल. तो ऐसे कॉपीज अलग अलग रखने से बड़ा इजी रहता है अपना. या if you have one of those big diary kinds which you can maintain. I also agree with Rama di कि आपको blessings की डायरी तो एक अलग रखनी चाहिए ताकि उसमें और कुछ हम लोग किचपिच नहीं करें. वो खाली blessings का ही है. कुछ रेफर करना हो कि हमने magnificent outcome कैसे लिखा था या उसके बारे में क्या लिखा था और वो सच हो गया, तो sometimes you want to see. So you can make a separate diary for this, and if you want you can make 3-4 diaries and segregate them कि एक खाली अधिराज के लिए है, if like I'm talking about केतकी जी कि उसमें सिर्फ अधिराज के gratitude लिखे हुए हैं, एक में सिर्फ मे बी husband के लिए लिखे हुए हैं that way, या एक में आधा आधा कर लिया आपने, work है या ऐसे है. You can do it for yourself like that. Okay, so I think let's call it a night. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, Priya. Thank you. Yes. Thank you, Priya. Good night, everyone. Good night. See you tomorrow. Thank you. Good night. Thank you. Good night, Priya. Good night.